Hello students, hope you all are doing well. So in the last class of design of reinforced cement concrete, you have already studied what is the RCC, what is the introduction for RCC was given to you. Then you have understood what are the advantages of RCC. Even the loads coming on RCC structures are being told in the previous video. So in the next video, now in this video, you will be studying the methods of designing the RCC structure. Means by what all methods you can design the RCC structure. So there are various methods to it. Okay. So first one is working stress method. Second one is ultimate load method, and the third one is limit state method. These are the three methods by which you can design the RCC structures, reinforced cement concrete structures. So first one working load and the second one ultimate load method are the traditional ones. These are outdated ones. ये क्या है, outdated हो गए, traditional हो गए. अभी डिजाइन के लिए ये दो methods use नहीं करते. So the third one is limit state method. Okay, this is the latest one. जो अभी जो भी डिजाइन करते हैं हम बिल्डिंग, practically now in the present whatever buildings are designed we uses limit state method. और आगे भी जो इस सब्जेक्ट में मैं आपको डिजाइन सिखाऊंगी वो किस पे बेस्ड होंगे, लिमिट स्टेट मेथड पे ही बेस्ड होंगे. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी ऑल these three method one by one. So the first method is working stress method. Okay, working stress method of design, which is shortly called as WSM. Okay, so let me read it. It is the method used for reinforced concrete design where concrete is assumed to be elastic. Okay, जो concrete है वो elastic zone में है, ऐसे हम assume करते हैं and then we design this structures. So next one is steel as well as concrete. Steel and concrete is assumed as elastic. Okay, both are assumed as elastic and the relationship between the load and stresses is linear. मतलब क्या है, I'll give you example by this stress strain curve. आपको सबको पता है ये stress strain curve क्या है, you have already studied in your SOM subject. Okay, तो क्या है, this is the curve again stress versus strain. तो इसमें क्या हो रहा है आपका from O to A. क्या है O to A, क्या है, stress is linearly proportionate to the strain. So this part, okay, whatever is this part is called as इलास्टिक जोन. ओके, तो फिर जो इस मेथड में यूज कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कर रहे हैं, कंक्रीट एंड स्टील बोथ आर इन दिस इलास्टिक जोन. व्हाई? बिकॉज द स्ट्रेस इज लीनियर टू स्ट्रेन. एक से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. तो ये क्या हो गया, इलास्टिक जोन हो गया आपका स्टील का भी एज वेल एज ऑफ कंक्रीट. तो इस जोन में आप जो डिजाइन करोगे उसको क्या बोलोगे आप, वर्किंग स्ट्रेस मेथड. Okay, in this method whatever design you are doing is called as working stress method. So in this method the steel as well as concrete is assumed to be elastic. Okay, and the relationship between the load and stresses is linear as I shown you in this graph. Wherever this is the linear proportionality limit, so whatever design you are doing considering these loads is called as working stress method. Okay, next one is what, see, stresses in members are considered for normal working load condition without any safety to collapse. Okay, जो भी आप लोड कंसिडर कर रहे हैं वो क्या है, वर्किंग लोड है, उसके लिए कोई भी फैक्टर नहीं यूज किया गया है. ओके, उसके वजह से क्या होगा, मतलब वर्किंग लोड जब तक है तब तक आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर सेफ है, लेकिन जब लोड एक्सीड हो जाएगा, लोड बढ़ जाएगा, तब क्या है, कोलैप्स हो सकता है बिल्डिंग. सो दिस इज नॉट safe, this is the danger thing in this method. Okay, next one is what, working load is fixed by limiting stresses at which cubes and steel breaks. मतलब वर्किंग लोड कैसे फिक्स करते हैं, क्या इन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन क्या करते हैं, कंक्रीट के क्यूब्स और स्टील क्या है, दे विल बी टेस्टिंग इट. ओके, एट विच इट ब्रेक्स नो, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग लोड. जहां पे ब्रेक हो रहा है आपका मटेरियल उसको वर्किंग लोड करके फिक्स करते हैं. हाँ, एंड देयर इज ऑल्सो अ फॉर्मूला टू फिक्स द वर्किंग स्ट्रेस. सो वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों दिया जाता है, मतलब थोड़ा अपने बिल्डिंग को सेव करने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया जाता है. नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज 3 and for steel is 1.8. So whatever in this formula this factor of safety is there, for concrete it is always 3 and for steel it is always
1.8. So this was all about working stress method. Now next method is ultimate load method. Okay, ultimate load method में क्या हो रहा है आपका? This method is also called as लोड फैक्टर मेथड. रिमेंबर, ओके, इसको आप लोड फैक्टर मेथड भी बोलते हैं. एग्जाम में कभी कभी पूछेंगे आपको व्हाट इज अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइन भी पूछ सकते हैं, या ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द लोड फैक्टर मेथड. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज अल्टीमेट लोड इज ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द वर्किंग लोड बाय सम फैक्टर. ओके, जो यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड वर्किंग स्ट्रेस मेथड में वर्किंग लोड यूज करते थे उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़े फैक्टर से क्या करेंगे, बढ़ाएंगे. It is increased by certain factors so that the structure is safe. These factors are multiplied by working load. जो भी फैक्टर आप इस्तेमाल करोगे उसको क्या करोगे, वर्किंग लोड से मल्टीप्लाई करोगे, so that the load कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इज इंक्रीज. मतलब जो लोड कैरी कर रहा है स्ट्रक्चर उसका कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से आप आपके बिल्डिंग डिजाइन करोगे. फाइन. दिस मेथड यूटिलाइजेस द लार्ज रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक रीजन. मतलब क्या है, जैसे लास्ट टाइम जो लास्ट मेथड था उसमें हम लोग इलास्टिक जोन में स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे थे, मगर इस बार हम लोग प्लास्टिक रीजन में क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं. इन दिस ग्राफ आई टेल यू, ओके, फ्रॉम ए टू बी क्या हो रहा है, इलास्टिक जोन है जहां पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर लीनियर. आफ्टर दैट फ्रॉम बी टू सी व्हाट हैपेंस इज इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड इट इज गोइंग टू इंक्रीज. Okay, stress is going to increase for the application of the load. But अगर आप load डालना छोड़ दोगे, okay, when you stop applying the load, it will again come back to the B. Okay, this curve will again come back to B after once you stop the application of the load. तो ये इसको आप क्या बोलोगे, plastic zone. Whatever is this is called as plastic zone. The point between B to C is the plastic limit and whatever the zone is there is called as plastic zone. मतलब क्या है, इसमें अगर आप कोई डिजाइन करोगे तो उसको क्या बोलोगे आप, ultimate load method. Okay, elastic zone I told you, whatever designing you are doing in this elastic zone is called as working stress method. Whatever design you are doing is in this plastic zone is called as अल्टीमेट लोड मेथड. तो इस मेथड में क्या, प्लास्टिक रीजन बहुत जरूरी है, जो स्ट्रेंथ है वो प्लास्टिक रीजन में कंसिडर करते हैं. ओके, दिस सेक्शन बिकम्स स्लेंडर एंड थिन. स्लेंडर मतलब क्या है, सेक्शन छोटे हो रहे हैं, सेक्शन का साइज जो है वो कम हो रहा है, डायमेंशन ऑफ द सेक्शन आर बीन लेस इज लेस. ओके, दिस में लीड फॉर एक्सेसिव क्रैकिंग एंड डिफॉर्मेशन. क्रैकिंग मतलब क्या है, आपके स्ट्रक्चर्स पे छोटे छोटे क्रैक्स आते हैं विच इज वेरी अनप्लीजेंट टू सी. ओके, एंड डिफॉर्मेशन मतलब क्या है, आपके जो स्ट्रक्चर है सेक्शन से उसका शेप चेंज हो रहा है. ओके, चेंजिंग इन शेप और साइज इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन. क्रैकिंग और डिफॉर्मेशन होने से क्या होगा, आपका बिल्डिंग एक तो दिखने के लिए अच्छा नहीं दिखेगा और आपको सेफ फील नहीं होगा. इफ यू सी द स्ट्रक्चर विच इज हैविंग क्रैक्स इन इट, सो इट इज यू विल नॉट फील सेफ to be in that structure. So in this method it is going to give a good performance for strength. मतलब आपका बिल्डिंग कोलैप्स तो नहीं होगा, गिरेगा तो नहीं, लेकिन क्या है, सर्विसेबिलिटी में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा. So it will give the excessive cracks and deformation. Therefore this method does not consider for serviceability requirement. Serviceability requirement मतलब क्या है, जहाँ पे क्रैक्स एंड डिफॉर्मेशन नहीं होने चाहिए उसको क्या बोलोगे हम लोग, सर्विसेबिलिटी. लेकिन इस जो ये मेथड से अगर आप डिजाइन करोगे तो इसमें सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट आपको नहीं फुलफिल होंगे. वाई, बिकॉज इट इज गिविंग एक्सेसिव क्रैक्स एंड डिफॉर्मेशन. तो इसके वजह से दिस मेथड का ये डिसएडवांटेज है कि दिस इज नॉट गोइंग टू गिव द परफॉर्मेंस इन सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट. नाउ नेक्स्ट वन इज लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन, जो अभी इस्तेमाल होता है. प्रेजेंटली वी यूज दिस मेथड फॉर डिजाइनिंग ऑल द स्ट्रक्चर्स, शॉर्टली कॉल्ड एज LSM. ओके, तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट मेथड था वर्किंग स्ट्रेस मेथड, फर्स्ट मेथड कौन सा था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसमें क्या हो रहा था आपका, it was not giving you the performance in state of collapse. It was giving you good performance at working load, but एक बार अगर आप load increase कर रहे हो तो it was not giving any good performance at the state of collapse. मतलब क्या, it was danger for anytime it can fall if the load exceeds. ओके, नेक्स्ट में क्या था, अल्टीमेट लोड मेथड में क्या हो रहा था, इट वाज गिविंग यू
safety. It was providing the assessment for safety, but it was not guarantee giving the performance at serviceability requirement at service load. Okay, मतलब इसमें safety था, there was no danger of collapse, but it was not giving you the serviceability requirement. मतलब cracks and deformation was exceeding. So ये इस मेथड में आपको danger of collapse था, इस मेथड में danger of collapse तो हट गया था, लेकिन serviceability requirement नहीं थी. Okay, so क्या हो गया? Therefore, an ideal method is the one which takes both safety and serviceability. ओके, सेफ्टी भी चाहिए हमको और सर्विसेबिलिटी भी चाहिए. मतलब अपना जो बिल्डिंग है वो स्ट्रांग भी होना चाहिए एंड उसमें क्रैक्स और डिफॉर्मेशन भी नहीं होने चाहिए. तो टू सेटिस्फाई दीज टू क्राइटेरियाज अ न्यू मेथड इज बीन इंट्रोड्यूस्ड. ओके, अ न्यूली इमर्जिंग लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन गिव सेटिस्फैक्टरी असेसमेंट टू बोथ सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी. जहाँ पे सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी दोनों का ख्याल रखा जाता है, वो नया मेथड कौन सा है? लिमिट स्टेट मेथड. अंडरस्टैंडिंग? सो this new method makes the judicious combination of working stress philosophy as well as अल्टीमेट लोड मेथड. ओके, अल्टीमेट वर्किंग स्ट्रेस में जो कमियां थी, जो वहां पे डिसएडवांटेजेस थे वो हटा दिया गया है, एंड अल्टीमेट लोड में जो डिसएडवांटेजेस थे वो हटाया गया है. तो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मेथड्स वन न्यू मेथड इज बीन फॉर्म विच इज कॉल्ड एज लिमिट स्टेट मेथड, विच इज गिविंग यू बोथ सेटिस्फैक्टरी असेसमेंट टू बोथ सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी. इस मेथड में सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी दोनों का ख्याल रखा जाता है. ओके, there are three types of limit state and consider in the designing. Okay, limit state में भी और तीन